Dear learners of class 9, in my previous video lecture, I have discussed about motion, the basic concept of rest and motion, position and reference. Today I am going to discuss distance and displacement. What is its important to describe motion, and what are the differences between distance and displacement, and some basics about scalar and vector quantity. As we know that to describe the motion of a body and analyze it mathematically, we have to determine two physical quantities, that is position and displacement, position and time. In previous session we have discussed that when a body changes its position in a particular reference with respect to time, then it is said to be in motion. So to understand motion, we have to first understand the position, change in position, and this is change in position can be termed as distance and displacement. How? Look at here. Suppose a body is at point A at some instant of time t1, and after some time it goes to point B, and here it is at time instant t2. There are those two time of instant, t1 and t2. Now its path may be like this or like this, or it may be directly headed to from A to B. This is path 1, path 2, path 3 and path 4. I have taken 4 paths from the point A to point B. Here the observer starts its observation for the change in position at time t1 and ends its of his observation at time instant t2. During this time period from t1 to t2, the body changes its position from A to B. This position, when the observation begins, is called initial position, and when the observation ends is called final position. तो हम लोग ये जाने कि एक बॉडी है जो A से B तक चला, टाइम t1 पे, टाइम t1 इंस्टेंट पे ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, और उस समय वो बॉडी सपोज करें कि यही मेरा रेफरेंस फ्रेम है और इसमें बॉडी t1 इंस्टेंट पे A पर है और t2 इंस्टेंट पे पॉइंट B तक पहुंच चुका है। और इस इनिशियल, इसको A को इनिशियल पोजीशन इसलिए कहेंगे कि ऑब्जर्वर की का ऑब्जर्वेशन शुरू होता है, यहाँ से बॉडी के मोशन को या पोजीशन चेंज को वॉच करना शुरू करता है ऑब्जर्वर, और t2 पे उसका ऑब्जर्वेशन एंड होता है। तो दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सी इन द सिंपल वे, कोई बॉडी A से B तक इन डिफरेंट पाथ्स के जरिए जा रहा है, तो पाथ 1 का लेंथ, पाथ 2 का लेंथ, पाथ 3 का लेंथ, पाथ 4 का लेंथ, मीन्स इन जनरल सेंस किसी बॉडी के व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, द लेंथ ऑफ पाथ of the moving body from its initial to final position is termed as its distance traveled. What is the definition of distance? The length of path traced by a body during its motion from its initial position to final position is called its distance. तो हम लोग डिस्टेंस का डेफिनेशन इस तरह से देख लें. The length of path traced by a moving body from its
initial to final position is called its distance traveled. Means length of path 1 length of path 1, 2, 3 or 4 considered as distance traveled. एक खास बात यहाँ सामने आ रहा है कि डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, डायरेक्शन का कहीं कोई जिक्र नहीं है डिस्टेंस ट्रेवल में. It means we are talking about only magnitude of length of path. सिर्फ हम लोग पाथ के लेंथ के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट डायरेक्शन. डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. मीन्स distance traveled is a scalar quantity. What is the meaning of a scalar physical quantity? A scalar quantity are those which has only magnitude. ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हो उनको हम लोग स्केलर कहेंगे. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक बॉडी के द्वारा जो पाथ ट्रेस किया गया है इसके मोशन के क्रम में, उस पाथ की लंबाई को कहते हैं हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल्ड. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? आउट ऑफ दीज 4 डिस्टेंस ट्रैवल्ड, one will be its displacement. How? The shortest path traced by the length of the shortest path traveled by the body from its initial to final position is called its displacement. Here path 3 is can be considered as displacement. So now we can see displacement, definition of displacement. Displacement. Displacement, it is the shortest path of a moving body from its initial to final position. So we can write it like this: the shortest distance traveled by a body in motion from its initial to final position. Initial to final position. The shortest distance traveled by a body in motion from its initial to final position. This one will be called as distance traveled, and the shortest distance between any pair of 2 points will be a straight line as shown here, AB. This shows direction from A to B. A to B direction. So path 3 gives displacement and direction is here, direction from A to B. So the shortest path, we may also say that shortest path from initial to final position is also called displacement. Shortest path और shortest distance traveled जो भी यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं
shortest distance traveled from initial to final position is also called displacement. And here A to B is a straight line starting from A headed to B. Actually this is a ray starting from A and headed to B. So AB will represent the displacement. AB displacement को व्यक्त करेगा यहाँ पर, और यह पाथ 3 हमारा है जो इस डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में दो खास बात समझ में आ रहा है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, कुछ ना कुछ लेंथ भी होगा और इसका एक डायरेक्शन भी फिक्स है, और वो डायरेक्शन होने की वजह से ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर कहेंगे जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। सो वी कैन डिफाइन ऑल these terms as like this. Displacement has both magnitude and direction. Displacement has magnitude and direction, so it is a vector quantity. तो हम लोग डिफाइन कर लें स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे, द फिजिकल क्वांटिटीज that have only magnitude are called scalar। और अभी एग्जाम्पल हम लोग देखें यहाँ पर डिस्टेंस वेक्टर किसको कहेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी quantities that have magnitude and direction both are called vector। Example, displacement Now, in which unit the distance and displacement will be measured? Since both distance and displacement both are measurable in terms of length, whenever we try to measure distance, then we have to measure length। जब हम distance मापने की कोशिश करेंगे तो भी length को मापना होगा, या displacement मापने की कोशिश करेंगे तो भी length ही मापना पड़ेगा। इसलिए unit for distance and displacement both are is meter। मीटर सिंबॉलिकली m। तो ऐसा यूनिट में हम लोग इसको मीटर में मापेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को। अब कुछ फैक्ट्स इसके बारे में जाने। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ अ मूविंग बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, आइदर इट इज शॉर्टेस्ट और नॉट। एंड unit of distance and displacement both are meter, both is meter।
and distance is a scalar quantity while displacement is a vector quantity. One fact is also here, since distance is a scalar quantity and it has no direction, so it will be always positive, it will never be negative or zero. अगर हम लोग डिस्टेंस को मापें तो हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इस बात को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लें। सपोज करें कि एक बॉडी है, ए से बी तक गया, स्ट्रेट लाइन पे ही गया और फिर उसी स्ट्रेट पाथ पे वह वापस भी आया। अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम है। ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। लेकिन लेंथ ऑफ पाथ ट्रेस्ड, अगर ये ए से बी तक की दूरी x है तो इसका डिस्टेंस 2x होगा, जो कि लेंथ ऑफ पाथ है, लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का लेंथ ऑफ पाथ। ये खास बात हुआ। अगर बॉडी अपने इस बिगिनिंग पॉइंट से और पीछे आ जाए तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस या तो ज़ीरो होगा जब बॉडी रेस्ट में है, या फिर पॉजिटिव, यानी जब कभी भी इसमें इंक्रीमेंट ही हो सकता है, ये इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। ये खास बात हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर समझे। अब हमको थोड़ा सा ये भी जानना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है। एक और बात, क्या डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है? व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? तो डिस्प्लेसमेंट अगर स्ट्रेट पाथ पे बॉडी मूव कर रहा होता है तो उस समय उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा। अगर बॉडी इनिशियल टू फाइनल गया है और उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो किसी दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में, ये दो ए और बी अलग अलग पॉइंट्स हैं और इसके बीच में ये डिस्प्लेसमेंट है और ये अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड का वैल्यू या तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, this sign is modulus sign and called magnitude. Displacement magnitude is either equal to or less than distance traveled between two distinct means अलग अलग, two distinct initial and final position या फाइनल पॉइंट। दो अलग अलग इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमेशा या तो बराबर होगा या डिस्टेंस की तुलना में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा होगा। यह भी एक रिलेशन है। इसका यह मतलब है कि द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। वी कैन राइट दिस लाइक दिस, displacement magnitude by distance is always less than equal to 1। ये रिलेशन यह बतला रहा है कि किसी मोशन के सिचुएशन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। तो आज के लिए हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को समझे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स
और अदर दूसरे टॉपिक्स को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।